What is your goal? The last boy said, Sir, I want to be happy. Friends, sometime in our life, situation fold us. Sometime time crushes us. Sometime failure, criticism, isolation, stress, tension, loneliness give us pain with the wrinkle, with the scar. But my dear friends, if you have 1 million problem on one side, and if you have only Prabodh Swamiji on the other side, your value would never go down. टेंशन में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, उसको लगा कि there is nothing left for me in my life, I should commit suicide. सज्जन स्वामी महाराज की जय, गुरु गरी हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज की जय, प्रगट गुरु हरि प्रबोध जीवन स्वामी जी महाराज की जय जय जय, हरि प्रबोधम अमृत महोत्सव की जय जय जय, दास के दास होने की जय। दिव्य रूप से विराजमान हम सबके इष्ट देव भगवान स्वामी नारायण गुरु हरि प्रसाद स्वामी जी, प्रगट गुरु हरि प्रबोध जीवन स्वामी जी, वडील संतवर्य पूज्य हरिप्रिय स्वामी जी, सार्थक जीवन स्वामी जी, हरिदत्त स्वामी जी, हम सबके जो पथ दर्शक है, हमारे मित्र भी है, हमारी माता भी है, हमारे फ्रेंड्स भी है, फिलोसोफर भी है, वैसे पूज्य रवीश अशोक अंकल ने हमें बताया कि हमारे जीवन में क्लैरिटी ऑफ destination, clarity of goal, to experience the successful life. उन्होंने बताया कि we need divine guru in our life. मनीष भाई ने बताया कि we must attend the weekly forum and we must keep a company of good friends to achieve the desired goal and to avoid any kind of addiction. Before I start, I would like to ask Manish Bhai, come up on the stage. Please, Manish Bhai. If you have 100 rupees note in your pocket, could you please show it to everyone? Just show it to everyone. What is this? What is this? 100 rupees note. What is the value of this note? Okay, Manish bhai, could you please fold it in half? Now show it to everyone. What is the value of this note? Are you sure? What is the value of this note? Okay, Manish bhai, again fold it 4 times. Friends, look at carefully. What is the value of this note? Really, are you sure? Yes. Again, what is the worth of this note? Okay, Manish bhai, again just crumple it, squeeze it. What is the value of this note? What is the worth of this note? Are you really sure it is? Okay, thank you, Manish bhai. You may sit. When the note was crystal clear, the worth was 100 rupees. When the note was folded in half, what was the value?
When it was folded 4 times, what was the value? When it was crumpled, squeezed with the wrinkles, what was the value? Friends, sometime in our life, situation fold us. Sometime time crushes us. Sometime failure, criticism, isolation, stress, tension, loneliness give us pain with the wrinkle, with the scar. But my dear friends, if you have 1 million problem on one side, and if you have only Prabodh Swami on the other side, your value would never go down. No matter how hard the situation you may face in your life, your value would remain same. Your worth would remain same. So years back, काफी सालों पहले, in the very posh school of London, a teacher asked a simple question to a boy. What you would want to be in future? आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में? What is your goal? One of the boys said, I want to be engineer. Others said, I want to be doctor. Others said, I want to be a social leader. Others said, I want to be a soldier. At the end of the row, the last boy said, Sir, I want to be happy. Teacher was very confused. Teacher said, I think you didn't understand my question. I asked what you want to be in the future. Then the last boy, when the teacher said, you did not understand my question. And the boy replied, Son, if you say, I didn't understand your question, I would like to say, you did not understand the life. Because life is not only meant to be doctor, engineer, soldier, or social worker. Along with that, life is meant to be happy. And that's why that is our goal, to be happy. If your goal is to be happy, you will be successful, even selling pani puri. So our end goal is to be happy. Now, I am going through step by step with small title and stories. Chapter 1. Obviously, it's not chapter 1 of Dhurandhar. Right? So the first, the check of divinity. The title is check of divinity. काफी सालों पहले एक बिजनेसमैन था. He was successful businessman, but eventually, obviously, उसके जीवन में कोई अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, मेंटोर नहीं थे, गाइड नहीं थे. तो सक्सेसफुल बिजनेस टोटली वो फेल हो गया. क्रेडिटर्स वो बिजनेसमैन के पास पैसे मांगने लगे, वो डेट में चला गया पूरा बिजनेस. उनकी जो प्रोडक्ट्स थी वो सेल कंप्लीटली ऑल गॉन इन डाउन. सो टेंशन में आ गया, स्ट्रेस में आ गया. उसको लगा कि देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी इन माय लाइफ, आई शुड कमिट सुसाइड. तो अपनी कंपनी के बाजू में एक छोटा सा गार्डन था, वहां पे बेंच था, वहां पे वो चला गया, बैठा. जब हम टेंशन में रहते हैं तो हमारा जेस्चर कैसा होता है? वैसे बेंच पर वो बैठ गया. अब क्या होगा, कैसे होगा?
I am a total failure. Same kind of expression at certain point of our life we may also experience. वो जब टेंशन में था तब एक एल्डरली पर्सन, वृद्ध, उसके पास में आके बैठ गया। उन्होंने पूछा while observing कि there is something going on in his mind, something playing on his mind. तो वो वृद्ध आदमी ने पूछा कि भैया आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो वो टेंशन में ही था, हम टेंशन में हो और कोई पूछे कि क्या चल रहा है, तो gladly the CEO of that company explained every situation that my entire business has gone down, my hard work is total became zero. Creditors are asking for money, there is no sale for me, no customers. So there is no way to come out of this situation. I need money. Okay. वो वृद्ध आदमी था, उसने हेल्प पहनी हुई थी, हेल्प निकाली, उनमें चेकबुक थी, आपका नाम बोलो, नाम बोला, उसने साइन की और $500,000 उसको दे दिए, $500,000। वो सरप्राइज हो गया, यार, with this amount of money, I could definitely come out of my debt. I could be a successful businessman again. He got inspiration. He got motivated. All the worries was fading away. He was started becoming and even feeling happy. Now the good days are coming. अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। $500,000 check. $500,000, 500,000, right? $500,000 check. और जो नीचे सिग्नेचर की, उनका नाम था जॉन डी रॉकफेलर. He was the richest person of 19th century. 1937 or 38, he passed away. He was the oil tycoon of the United States. So, क्या बात है? Mr. John D. Rockefeller, he gave me check, $500,000. Renewed enthusiasm, renewed energy. He went to home. बिजनेसमैन घर पे गया, उन्होंने सोचा कि अभी तो ये चेक का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, I will use this check as a base, कि कुछ अगर मैं नहीं कर पाऊं तो इसको कैश करके बिजनेस को आगे ले जाऊंगा, but let me try with my creditors, let me sit with them, let me negotiate with them. So he kept this check in his locker. He went to all the creditors with the renewed enthusiasm, with the renewed energy, with the renewed hope. He sat with the creditors, negotiated with them, and extended the payment terms. And then, with the renewed enthusiasm, he sat with the team, motivated them, and team को बोला कि हमें आगे बढ़ना है, हमारे पास फुल सपोर्ट है. सपोर्ट तो लॉकर में था, 500,000 का, वो चेक में लिखा हुआ था, बाकी कोई और नहीं था. अब हिम्मत से आगे बढ़ो, विश्वास से आगे बढ़ो, प्रोडक्ट हमारी बिकेगी. तो even the motivated team, they did try their best, and after that, their products were started selling gradually. So within a year, that businessman came out of entire debt. Again, he achieved the epitome of the sale. And he thought, now I am settled. Still, that the check worth of $500,000 were in locker. He did not encash it. As promised, after a year, he went to that park. क्योंकि वो वृद्ध आदमी ने बोला था कि अब सेटल हो जाना 1 साल में, उसके बाद मुझे मनी वापस दे देना.
So as upon agreed terms, he went to the park, sat on the bench. After a while, that elderly person came, sat on the bench along with him. वो जैसे वृद्ध आदमी है उसके पीछे नर्स आए और वो बिजनेसमैन को बोली थैंक गॉड आपने इसको रखा। बिजनेसमैन ने बोला कि ये तो हमको मिले थे तो ये नहीं, ये तो हमारा मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट है, हर रोज वहां से भाग जाते हैं और बेड पे बैठता है और सबको बोलता है कि मैं जॉन डील रॉकफेलर हूं, रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, और उसने फेक चेकबुक भी रखी है, वो सबको देता है। My dear friends, what is the takeaway? That businessman was about to suicide. कोई पागल आदमी आता है उसको बोलता है कि मैं रिचेस्ट पर्सन में चेक लेगा। उसने पागल आदमी पे भरोसा करके काम चालू किया। वो सुसाइड करने वाला था लेकिन पागल आदमी पे विश्वास किया तो सुसाइड में से सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। प्रबोध जीवन स्वामी जी है, वो भगवान धारक संत थे, हम उन पे विश्वास करेंगे तो क्या होगा? Keep your belief and utter faith on Guru Hari Prabodh Jivan Swami ji. You will come out of any misery, any tension, any stress, any kind of adverse. जो बात की मनीष भाई ने, जो भी स्वभाव है उनमें से वो अपनी डिविनिटी से हमें बाहर निकालेंगे। That's why I titled the check of divinity. So हमारे भरूच में एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। I should not disclose the name of that company, but still going on. 30,000 करोड़ रुपीस उनका टर्नओवर है, जो फार्म में सल्फेट जिसको बोलते हैं वो बनाता है। तो वो कंपनी में एक लड़का जॉब करता है और उनके डिपार्टमेंट की एक अजायबी है कि उनके डिपार्टमेंट के जो एमडी है, एमडी से लेके प्यून तक वर्किंग आवर्स में सब मोबाइल पे ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। मनी काम 1-2 घंटे चाय पे करते रहेंगे शायद, बाकी सब ऑटोमेशन एआई से चलता है। तो पूरे दिन ऑनलाइन गेमिंग में पैसे सब एमडी से लेके प्यून तक एक साथ ही खेलते हैं। तो वो लड़का भी वहां इंजीनियर था, जॉब लगी तो ऐसे पार्ट ऑफ कल्चर वो भी खेलने लगा। तो पहले 5 लाख डाले, वो वेपराइज हो गए। उसने सोचा, एमडी ने मोटिवेशन दिया, रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में, फेलियर इज द स्टेप ऑफ सक्सेस। डालो 5 लाख और दूसरे 5 लाख डाले, वो भी चले गए। एमडी ने बोला क्या बात करते हो, ये तो छोटी सी लॉस है यार, 10 लाख क्या चीज है, ले लो मार्केट से। 40 लाख ले गए वो लड़के, 40 लाख चले गए। तब उसको अकल आई, क्या 40 लाख चले गए वो खारी सिंह चना में, अब क्या करेंगे? तब उसने सोचा कि अभी मार्केट से 40 हो गए। कंपनी के बाहर बैठा था बेंच पे, प्यून आया, साहब क्यों ऐसे चिंता में लगे, 40 लाख चले गए, क्या बात करते हो, आप तो जीनियस हो, 40 और मार्केट से उठाओ, 80 जीत जाओगे यार। प्यून ने मोटिवेशन दिया, वो केमिकल इंजीनियर था, खुद पे भरोसा नहीं था, वो है हमारा माइंड प्यून जैसा है, हम उस पे भरोसा करते हैं। मनीष भाई और स्वामी जी
पे नहीं करते, प्यून पे भरोसे का मार्केट से और 40 लाख उठाए, वो चले गए 80 लाख। दिस इज रियल स्टोरी। सुसाइड करने का सोचा, अपनी कंपनी जीएनएफसी भरूच में ही है, अपने डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग है वो 5 स्टोरी है, पांचवें मंजिले पे वो गया टेरेस पे। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम की पॉलिसी है, अगर मैं यहां से कूद जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो 2 करोड़ की पॉलिसी पक जाएगी। 80 लाख जो डेट है वो मदर और मेरी जो वाइफ है घर पे आते हैं क्रेडिटर्स लेने के लिए, हर रोज परेशान करते हैं, फोन नंबर बदलना पड़ता है, हर रोज इतना कॉल्स आता है, तो वो भी फ्री हो जाएंगे, घर पे कोई आएगा नहीं, इज्जत बच जाएगी और 1.5 करोड़ बच जाएंगे मेरी वाइफ, माँ और बच्चे के लिए। वो 5th मंजिल पे गया, कूद पड़ा, सोचा मर जाएगा, मरा नहीं, हाथ और पैर टूट गया, जी गया। एड ऑन टू 80 lakhs। भाई क्या गोल क्लियर करना है इसमें? एड ऑन टू 80 lakhs, हॉस्पिटलाइज। मनीष भाई जैसे कार्यकर्ता, उनके जो बड़े भाई बड़ौदा में रहते हैं, हमारी सभा करते हैं, ये तो नहीं भरता था। उनका फोन आया कि मेरा भाई है, 80 लाख, जय जय शिव शंकर, अभी हॉस्पिटल में है। हमारे तुलसी भाई करके, हमारे उनके पार्थ भाई के पिताजी हमारे साथ है, वो गए, उन्होंने वीडियो कॉल पर मुझे दर्शन करा कि स्वामी जी ये युवक है, 80 लाख का डोनेशन हो गया है ऑनलाइन। तो हमारे कार्यकर्ता पॉजिटिव बोलते हैं, युवक को वो ऐसा भी नहीं लगने देते कि मैंने बोल किया। स्वामी जी आप हॉस्पिटल आइए, अभी तो 2 दिन में आता हूँ, दूसरे दिन में वहां पे गया और मैंने सब, उसने स्टोरी बताई, तो हॉस्पिटल में तो कोई सलाह सूचन तो हम नहीं दे सकते। मैंने बोला कब? तो कभी 1 वीक में डॉक्टर ने बोला छुट्टी, तब आओ हम मिलेंगे। हम मिले, मैंने बोला अब वीकली सभा स्टार्ट करो, जैसे मनीष भाई ने बोला वीकली सभा। उसने पहला ही क्वेश्चन मुझे पूछा, वो लड़के ने, कि स्वामी जी मैं वीकली सभा अटेंड करूंगा तो मेरा 80 लाख रुपया वापस आ जाएगा? What would you answer to him? आप क्या आंसर दोगे? आ जाएगा? हाँ या ना? भोजन के टाइम पे डिबेट करना, अभी नहीं। मैंने बोला कि भाई सभा भरने से 80 लाख नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा। अगर आता रहेगा तो अंबानी भी सभा में नहीं आते, हमारे वो इंडस्ट्री नहीं चलाते। मैंने बोला सभा में आने से पैसा नहीं आता, सभा में आने से भगवान आते हैं, और भगवान जहां जाते हैं वहां लक्ष्मी जी आती है। तो कुछ सभा भरना स्टार्ट कर दे, पैसा भगवान के पीछे आएगा, पैसा सभा में नहीं आएगा। बोला क्या बात करते हो? मैंने बोला कि अगर इफ यू अटेंड वीकली फॉरम रेगुलरली, देन a God will create such an opportunity that either way your money would come back. Either way, something He would do, but you have to clarify your goal. That I want to do something good for my family, my professional career, my soul, my friends. Make your intention pure, and to do so, you need a good friends. And where would you get a good friends? At weekly forum. अच्छा, तो वीकली फोरम स्टार्ट करूं, तो अभी हैबिट तो थी, वैसा हार्ट कैसा हार्ट बीट होता है ना, ऐसे लब 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 लब, हिंदी में मराठी में क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते हैं, तो सभा में आता था फिर भी होता था, अभी और मार्केट से ले लो 80 वापस। वो मुझे प्रपोजल देता था, स्वामी अभी एक ब्रांड है वो अभी 80 दूसरा दे, खेल लो। अभी नहीं खेलना है, अभी सभा भरनी है, अच्छे फ्रेंड्स रखने हैं और भजन करना है, खेलना नहीं है।
भगवान को खेलने देना है तेरे लिए, हमें नहीं खेलना। 10-11 जो लड़का सुसाइड करने वाला था, वो बिजनेसमैन की तरह 10 सभा अटेंड की, तो देखो एक भगवान की, ऐसे प्रबोध स्वामी जी जैसे डिवाइन गुरु की शक्ति कितनी व्यापक होती है। तो वो जिस गांव में रहता था, उनकी 25 एकड़ जमीन थी, वो डिस्प्यूटेड थी 2 जनरेशन से। लेकिन जैसे ही ये युवक ने सभा अटेंड करने स्टार्ट की, विदिन 2 मंथ्स जो 2 पीढ़ियों से जमीन का लीगल राइट्स किसी के पास नहीं था, 2 महीने में उसका क्रिस्टल क्लियर राइट्स लैंड का क्लियर हो गया। और ये लड़के के भाग्य, उनके पिताजी तो यही नहीं थे, तो लड़के के हिस्से में, युवान के हिस्से में 12.5 एकड़ 12.5 एकड़ लैंड उनके नाम पे आ गए। वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में थी। 1 एकड़ का भाव 1 CR। एक बिल्डर आया, 1 एकड़ का 3 CR दिया, 36 CR में वो लैंड उसने बेची। 80 लाख का डेट था। सभा बनने स्टार्ट की, वो पैसे के पीछे नहीं भागा, वो भगवान के पीछे भागा। भगवान ने उसको 36 करोड़ रुपए इन रिटर्न दे दिए। So attend weekly forum. Don't think about how bad your nature is, how bad your thoughts are. Do not focus on whatever you have done in your past, whatever or any consequences you may have experienced in past, or you may be experiencing right now. Forget everything. Just start to attend weekly forum. Make your friends to attend weekly forum. Keep a good friend, keep a friendship of Manish Bhai and other volunteers, and do 20 minutes bhajan. I do not promise that your materialistic problem will go away. What I promise, if you follow these 3 things, weekly forum, good friends, and bhajan, then the God will be with you like oxygen forever. He will protect you and He will create such opportunity that you would become out of millions of problems. That is the benefit of weekly forum. So the title is very simple. What is weekly forum? Check off divinity. So just remember, weekly forum is check off. That's it. Right? So that chapter 1 is finished. Now what is the benefit, additional benefit that youth had got? Because of that kind of mess, his wife pursues MSc also, she was working. So because of this mess, she was going to divorce her. He had no father, only mother. His mother decided कि विल में से इसका नाम कमी करो, हमको बेच डालेगा। एंड यूथ को एक छोटी सी 6-7 साल की बच्ची थी। She was hating his father because of this mess. But as soon as he started to attend Sabha, the monetary problem was cured. But because of attending Sabha, more than monetary problem, the problem was distrust between his mother and him. Distrust between his wife and him. Problem was distrust between his own 6-year-old daughter and him. Because of attending Sabha, the bond and trust between mother, wife and daughter was established for forever. So that is the biggest benefit.
And now he is not only attending the Sabha, he became one of our best volunteer. Now, what department we assigned him? ऑनलाइन गेमिंग, कि जो भी इसमें फंसा है वैसे यूथ्स को हैंडल करता है। तो स्वामी जी बोलते थे कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो एक युवक को एनलाइटमेंट करेंगे तो वो युवक हजारों यूथ्स को एनलाइटमेंट करेंगे। दैट इज द विजन ऑफ हरिप्रसाद स्वामी जी एंड प्रभु जी। So the chapter 1, Chat of Divinity, is weekly forum, and see the magnified benefits of weekly forum. Second chapter, Mango Perspective. मैंगो की सीजन है अभी, वो भी चली जाएगी। सेकंड, अभी 3 पर्सपेक्टिव है, बाद में हम भोजन के लिए जाएंगे। तो एक ही बजाय तो मैंगो पर्सपेक्टिव, एक स्कूल की टीचर ने एक बच्चे को पूछा, if I give you 2 mangoes, I have 2 mangoes, so total mangoes कितनी हुई? बच्चे ने बोला 5। पहली बार तो हर टीचर मनीष भाई धीरज रखते हैं, नहीं बेटा तू पानी पी रहा है, अभी तू समझा नहीं है। हाँ बोलिए मैडम, मैं तुझको एंड ऑफरिंग यू 2 mangoes, I have 2 mangoes, how many mangoes do you want? He said 5 mangoes मैडम। क्या बकवास करता है यार, मम्मी को लेके आ तू यार, पापा को लेके आ। तो पापा है यार, तो बच्चे को यार सिखाओ कुछ। 2 मैंगो में देती हूँ, मेरे पास से कितनी होती है? 4 होती है, 5 बोलता है। पापा ने बोला इसको मैंगो अच्छी नहीं लगती, दूसरे कोई फ्रूट्स के एग्जांपल दो। ओके, मैडम ने बोला आई गिव यू 2 cherries, strawberries, I have 2 strawberries, how many strawberries in total? बच्चे ने बोला मैडम 4। हाँ, अब back to mangoes, you have 2 mangoes, I have 2 mangoes, how many mangoes? मैडम 5। पगला गया है लड़का। मैडम ने हाथ जोड़ के पूछा कि बेटा तो 5 क्यों बोलता है? तो मैडम आपके पास 2 है, आपने मुझे 2 दी और ऑलरेडी आई हैव 1 इनसाइड माय बैग। Mango perspective. See, the teacher was right technically, but boy also was right practically. Why we need spirituality? To balance between the technicality and practicality, we need spirituality. Here we need weekly forum, bhajan, to balance practicality and technicality. अभी हम बॉस्टन गए थे, यह सेट करके एक लड़का, वो मास्टर्स करने के लिए बॉस्टन में गया, एमएससी किया बायोलॉजी में, कैंपस में, वो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, वहां से उसका कैंपस भी लग गया अच्छी कंपनी में, प्रोफेसर पे था। और वहां जो भी जाता है सेट होने के लिए ही जाता है, ग्रीन कार्ड के लिए ही यूएस में जाता है। तो वो कंपनी का रूल्स था कि जो भी कंपनी ज्वाइन करे उनको हर फ्राइडे हैप्पी आवर्स, वहां पे कॉन्सेप्ट है हैप्पी आवर्स में, फ्राइडे को कंपनी में आधा दिन रहता है, हाफ डे यू हैव टू गो इन अ पब विद ऑल द कलीग्स, मैनेजर्स एंड सीईओ, यू हैव टू सिट विद देम, you have to drink with them, you have to eat with them, you have to dance with them, everything, and eventually you have to take drugs with them. वहां पे ड्रग्स का कल्चर एंजॉय। तो यस से वो सभा नहीं करता था, ऐसे सेट होने के लिए क्या आया, तो हैप्पी फ्राइडे तो उसको अच्छा लगा। अच्छा क्यों? दारू भी मिलती है,
सोशलाइजिंग भी होता है बॉसेस के साथ, बॉसेस की पैम्परिंग करेंगे, अच्छी पोजीशन भी मिलेगी, फुल टाइम परमानेंट कर देंगे, और परमानेंट किया तो ग्रीन कार्ड भी हमें वहां पे परमानेंट मिल जाएगा। 2-3 फ्राइडे वो वहां पे गए। लेकिन you guys believe or not, if you born and raised in India, then one by default benefit we get within our heart, कि आप जानबूझ के भी खराब करोगे, जानबूझ के भी हार्ट में से एक सोच आएगा कि ये नहीं करना चाहिए। That is the संस्कार of mother India। सभा भरो या न भरो, बाय डिफॉल्ट ये संस्कार हमारे हृदय में आते हैं। सभा भरने से we can bypass that negative thoughts. That is the benefit. So yes, said इंडिया में born and brought up हुआ था, मुझे लगा कि ये तो गलत बात है यार। I am compromising my own values. So उस दिन से वो बहुत confused रहने लगा। Technically he was right. If he attends the happy hours, then he will have an opportunity to socialize with the bosses. So he can get the permanent position and eventually he will get the green card. And he will settle down his life, he will call his parents and life would go on happily. He will achieve all kinds of goals. So he was technically right. But practically, should he continue with the drinking? Should he continue with the pampering? Is it the right method to live life? Don't you deserve your own dignity? Do you really have to take drugs to get a green card? To socialize with this kind of people? So he was very confused. Technically he was right, but practically he was confused. He was trying to search spirituality to make both perspective in balance. So he was confused, and one of our volunteers in Boston, USA, like Manish Bhai said, what extraordinary volunteers we do have in Haripurudam. Even by investing their own time, their own money, their own resources, they do seva for the youths. So वहां पे एक वॉलंटियर है, मिहिर भाई करके, वो डोर टू डोर जाते थे। कोलंबस में हमारी यूथ शिविर थी, वहां पे 3500 लाइक यू अटेंड करते हैं 3 days के लिए। तो वो डोर टू डोर नॉक करते थे। तो यश भाई के घर पे गए, उन्होंने बोला कि कोलंबस जो बॉस्टन से 1 घंटे दूरी पे है, बाय फ्लाइट जाना पड़ता है, बाय कार तो 15-20 घंटे लगते हैं। तो यश को बोले कि हमारी ऐसी शिविर है, ऐसे तो आप प्लीज आओ। तो यश ने बोला, इफ आई विल अटेंड दिस शिविर, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स वुड आई गेट? तो मिहिर भाई ने इंस्टेंटली बोला कि व्हाटएवर प्रॉब्लम यू डू हैव इन योर लाइफ, it will be resolved instantly if you attend the शिविर। He said, okay, I will attend. So eventually he went to the Columbus, Ohio, International Conference Center to attend 3 days शिविर, Hariprabodham Youth शिविर in USA. He was sitting in the last chair. 3500 youths बैठते हैं चेयर में, तो लास्ट लाइन की वहां पे बैठा था वो, क्योंकि he was new. So शिविर के एंड में एक सेशन आया कि आपके मन में जो प्रश्न हो उनका आंसर वहां जो सीनियर सेंस है वो लोग देंगे। तो स्कैन QR कोड displaying on the LED and type your question in your mobile and it will be displayed before the iPad, जो iPad एप्लीकेशन सीनियर सेंस के पास था। तो यश ने सोचा, ओके, क्वेश्चन लिखा, हैप्पी फ्राइडे, ड्रिंक्स लेना पड़ता है, ड्रग्स लेना पड़ता है, बॉस को पैम्परिंग करना है, लेकिन टेक्निकली आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट, आई बिलीव, बट प्रैक्टिकली शुड आई कंटिन्यू और नॉट? उसने कर दिया, और उसको तो लगता था कि 3500 यूथ स्पेशल लिखेंगे, मेरा कौन सा एड्रेस होने वाला है, तो ऐसे ही लिख दिया।
बिलीव और नॉट, एक सीनियर सेंस के पास आईपैड था। प्रबोध स्वामी जी तो सेंटर में थे, प्रबोध स्वामी जी के पास आईपैड नहीं था। तो प्रबोध स्वामी जी ने सामने से आईपैड मांगा, ये मुझे दो। और आईपैड के एप्लीकेशन के स्क्रीन पे जो पहला ही प्रश्न है वो यस का है। प्रबोध स्वामी जी ने पढ़ा कि कोई यूथ ने, उसमें नाम डिस्क्लोज नहीं होता था, कोई यूथ ने पूछा है कि हैप्पी आवर्स का कॉन्सेप्ट है, ग्रीन कार्ड के लिए मुझे ये वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पैम्परिंग करना पड़ता है, ये भी करना है। तो प्रबोध स्वामी जी ने सीधा आंसर दिया पूरे यूथ्स को, सब यूथ्स को, कि हम विश्व के सभी देश में जाते हैं, हम विश्व में लाखों लोगों के साथ सोशलाइज होते हैं, फिर भी हम ड्रिंक्स और ड्रग्स नहीं लेते हैं। तो क्लियर कट बोला कि सोशलाइजिंग होने के लिए ड्रिंक्स भी नहीं लेना है, ड्रग्स भी लेना नहीं है, पैम्परिंग भी नहीं करना है। दूसरी चीज प्रबोध स्वामी जी ने बोली कि स्वामी जी को प्रथम 16 और 18 का स्वामी जी का जो जेस्चर था कि इतनी 5 सेंसेस हमें पॉजिटिव रखनी है, तो स्वामी जी को स्वधर्म अच्छा लगता है, तो हमें स्वधर्म से जीना है। और तीसरी बात प्रबोध स्वामी जी ने बोले कि हम भारतवासी हैं, हमें भारतीय संस्कृति के जो वैल्यूज है, ग्रीन कार्ड मिले या ना मिले, वो वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। That yes, a youth was very convinced. Convinced इसलिए हुआ कि 3500 लड़के थे, उसमें से पहला क्वेश्चन उसका आना, पहली बार शिविर में आना, पहली बार क्वेश्चन टाइप करना, और वो भी प्रबोध स्वामी डायरेक्ट जवाब दे, तो उनको लगा कि प्रबोध स्वामी जी मेरा मन पढ़ते हैं, जो मन पढ़ते हैं वो मेरा प्रश्नों का समाधान भी वो करेंगे। तो उसको लगा कि ये भगवान धारक संत थे, he can see beyond the walls, अंतर्यामी है, he was convinced. तो because of that conviction, he blindly accepted Prabodh Swamiji's answer. Next day, after the civil, he went to the company and met with the arranged appointment with the boss, and he said, "Boss, please, from now onwards, I would never attend Happy Friday." He said, "Why, yeah? What are you saying?" No, because he straight away just popat ki tarah repeated the answer was given by the Prabodh Swamiji. Say, my guru is visiting all hundreds of countries around the globe, but he socializes with the millions of youths and people, but he doesn't like me to drink and take a drug. So I won't compromise with the Indian culture, Indian value, whether you would promote or not, whether you would apply for my green card or not. That was wild guy, the boss. And that boss was so impressed. He stood up and hugged him. He told, "Yes, you are very courageous. I would never do that. You are so courageous to keep the value and honesty with your own belief, own soul and own country. You are compromising with your bright future." And that attitude I like, because if you are not ready to compromise your value, I am damn sure you would never compromise honestly with this company. He said, "By tomorrow we will make you permanent, raise your salary, we will apply to green card to this Trump administration." Now he is the American green card holder right now. Mango perspective. Because of the association with the Prabodh Swamiji, because of the youth civil, he was able to make a balance between the technicality and practicality. So, Wycliffe Forum and association with a good friend is must. Now, last title, and I will conclude. Last title is focus.
एक कॉर्पोरेट कंपनी में एक डिपार्टमेंट था, एचआर डिपार्टमेंट। एक प्रोफेशनल अपने बॉस के पास जाता है, बॉस को बोलता है आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम माय पोजीशन। बॉस ने बोला यार तू अच्छा है यार, अच्छा खासा काम करता है, क्यों रिजाइन करना चाहता है? नहीं यार, अपने डिपार्टमेंट में सब फीजल की वो चुगली करते हैं, एम्प्लॉयज पूरे दिन काम नहीं करते, फोन पे लगा करते हैं, फेसबुक पे वो स्टेटस डाला करते हैं, वो 3 पत्ती गेम खेलते हैं, कोई काम नहीं करते ये लोग यार, मेरा टाइम वेस्ट होता है। बॉस ने बोला क्या बात करता है? हाँ तो आप आओ उस दिन अपनी ऑफिस से बात तब पता चलेगा। बॉस ने बोला कि आई वुड अलाउ यू टू रिजाइन बट फॉर मी एक पानी का ग्लास है पूरा छलोछल भरा हुआ, एक काम कर तू एक ग्लास लेके अपने डिपार्टमेंट में 3 राउंड लगा दे। The condition is you don't have to drop a single drop of water. You don't have to split down. Okay, इसमें क्या है? 3 राउंड लगा के मैं रिजाइन दे दूंगा। I will accept it. वो पानी का छलोछल बना हुआ गिलास लेके घूमा, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड ऑफिस में लेके घूम गया। कुछ देखा तूने? नहीं कुछ नहीं। कुछ हुआ तुझे? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ फील नहीं हुआ? आसपास जो लोग थे खुजली करने वाले, नहीं वो फेसबुक पे स्टेट, नहीं कुछ नहीं दिखा। तो क्या दिखा? आपने बोला था कि ये ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए, मुझे रिजाइन देना है, ड्रॉप गिर जाता रेजिग्नेशन आप नहीं लेते, मुझे करना। बॉस ने बोला कि देख 3 राउंड में जो लोग जो करते थे वो तो करते ही है, तेरे साथ वाले ही थे, लेकिन तेरा फोकस अपने गोल पे था कि इसको ड्रॉप करना। तो वो जो एक्टिविटी है दूसरों की वो तो चालू ही थी, तेरा फोकस तेरे गोल पे चेंज हो गया तो आजू बाजू वाले एम्प्लॉइज क्या करते हैं तेरे माइंड पे उनकी इंपैक्ट नहीं हुई। ऐसा फोकस तू कर दे, तू डोंट नीड टू रिजाइन, कि तुझे रिजाइन करने का मन नहीं होगा। फोकस। From Dubai to London last year we were flying to London from Dubai via NS, and me और निरंजन स्वामी जी, निरंजन स्वामी obviously दर्शन किए होंगे। निरंजन स्वामी प्लेन में बैठे बैठे वो धुन का टाइम हुआ, स्वामी नारायण ऐसे धुन करते थे। प्लेन में धुन करेंगे तो अगल बगल वाले वो तो आंख बंद करके करते थे। वो पीछे एक सेठ था दुबई से बैठा हुआ, प्लीज मॉक मेक हिम स्टॉप यार, टू लाउड डिस्टर्बिंग। निरंजन स्वामी ने ओह सॉरी निरंजन सो वेरी हम्बल पर्सन, सॉरी। 5 मिनट के बाद वहां पे दुबई में क्या है, यू कैन ड्रिंक इट ओपनली ऑन एयरपोर्ट, you cannot smoke but you can drink। so 2-4 बॉटल वोडका की लगा के एक यूथ आया था, वो प्लेन पे अभी सब सिटिंग अरेंज हो रहा था, तो ऐसे वैसे चिल्लाता था, इंग्लिश में गालियां बोलता था बड़ी बड़ी बड़ी। जितना ऊंचा निरंजन स्वामी जी का धूल का आवाज था उससे भी बड़ा लौड़ी कर रहा था वो दारू पी के। बाद में बोला ए मॉन्क, वो सेठ ने प्लीज यार मेक सम चैंटिंग टू स्टॉप हिम हियर। Now we have all in our hand to give it to that saint very humbly by observing God within him, considering friend as a friend. I replied to him, earlier you said this our mom, stop the chanting, right? Look at, dear friend, we do not chant to control others. What he did say,
chant loudly so that drunken guy would become silent. I said, dear friend, we don't chant to control others, we do chant to control our mind. Do bhajan, we will get the focus, we will control our focus. Now, last person, I will conclude 125. So, 5 minutes. Vinit Bhai karke, I was in San Francisco last year. I met one of the youth like you. He is working for NVIDIA. NVIDIA, I think it manufactures the graphics card and all, and so many things. Very large corporate and organization. So here he was from Mumbai, and he wasn't in Satsang here. He was working for the L&T in Goregaon. After being electronic engineer, he got placement in L&T, Borivali maybe. And then his vision was to get a position at the Dadar. I'm not sure Dadar में L&T है कि नहीं, but as whatever he said कि दादर में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे मुझको जाना, वो मेरा विजन था, क्योंकि दादर में पोजीशन मिलती है तो वो फ्लैट्स देते हैं रहने के लिए, वो काम करने के लिए सर्वेंट आ जाते हैं, फूड बनाने के लिए सर्वेंट आ जाते हैं, तो सैलरी बैंक में जाएगी और हमें राजा की तरह रहना है. तो that was my goal. But somehow he came into contact of Manish Bhai like volunteer, and at the Juhu where Hari Prasad Swamiji used to stay, and he had opportunity to meet Swamiji. Swamiji said, you must go to America and study masters. So he went to San Francisco, took an admission at very prestigious university, San Jose University, in electronics to do MS. So he studied for 1.5 years. He had 3 years of L&T managerial level experience. So he had wings of confidence before all the students that I have experience and I have some kind of status quo. He was in his own mood. So, and he was a good person, so he was helping all the students to draft the CDs. He was getting ready all the students for the interview. 1.5 years San Jose यूनिवर्सिटी में क्लियर करे MS में, उसके बाद 6 months का प्लेसमेंट होता है. तो प्लेसमेंट के लिए वो यूथ को ट्रेन करता था, तो जिसको वो ट्रेन करता था वो सबको प्लेसमेंट लगता था. अब उसकी बारी आई 6 महीने के बाद. उसने एप्पल में SF में एप्पल का हेडक्वार्टर है, मेटा का हेडक्वार्टर है, एप्पल में SF में, अमेज़न का सियाटल में, वॉशिंगटन स्टेट में, ओरेकल में, बोइंग में, एनवीडिया में, सब में सीधी अप्लाई किया प्लेसमेंट के लिए. ट्रेजेडी क्या हो गई, उसका सीडी जिन यूज का उसने रेडी किया वो सबको प्लेसमेंट लग गया. इंटरव्यूज के लिए जिसको विनय ने रेडी किया सबको प्लेसमेंट हो गया. विनय का प्लेसमेंट हर जगह से फेलियर आ गया. वो पूरा डीफोकस हो गया. यार कैसा क्या हो गया, मैं जिसको ट्रेन करता हूं वो लग जाता है, मैं खुद नहीं लग पाता. अभी 2 ही मंथ्स बाकी थे वीजा पूरा होने में. If he wouldn't get a placement, he has to come back to India. यहाँ से लोन लेके गए थे, मिडिल क्लास फैमिली. What would you do? Who will give you the solution? What will happen? And what will happen to the parents? What about my prestige? He was a bit of egoistic person. What my friends would say. So he was in tense. He was in overthinking, and such kind of disease we all are experiencing right now. क्या करेंगे? तो वहां पे मनीष भाई जैसे वॉलंटियर थे, उनको बताया कि यार ऐसा होता है, क्या करो. See what is the solution for overthinking? What is the solution for this kind of कि जितनी भी मेहनत करो, पूरा अपना स्किल सेट लगा दो, कुछ भी नहीं होता,
तो उसका सॉल्यूशन क्या है? Where is the solution? There are 300 million books, more than that, on this planet. Categories books की, उनमें भी सॉल्यूशन नहीं है। आप 230 साल तक एक भी वीडियो रिपीट ना करो और देख सको, इतना वीडियो मटेरियल यूट्यूब पे 230 साल, इफ यू लिव दैट लॉन्ग, वहां पे भी सॉल्यूशन नहीं। क्या सॉल्यूशन है इसका? तो वॉलंटियर ने सिंपल सा सॉल्यूशन दिया। हर रोग की एक ही दवा है, जो अशोक अंकल ने बोला, भगवान का भजन। वॉलंटियर ने बोला कि भगवान का भजन करो, सब कुछ हो जाएगा। विनय भाई ने बोला क्या बकवास करते हो यार, इतना सीरियस प्रॉब्लम है मेरे लाइफ का, भजन से हो जाएगा। वॉलंटियर ने बोला कि सॉल्यूशन ही क्या है? What other solution do you have? Okay, I will trust on you. I will do bhajan. He started doing bhajan. Sincerely, उसका मन मानता था, नहीं मानता था, बुद्धि मानती थी, नहीं मानती थी। Sincerely, विनय भाई ने भजन किया। 7 दिन तक भजन का। 7वें दिन हरिप्रसाद स्वामी जी उनके ड्रीम में आए। स्वामी जी को ड्रीम में जो ओवर थिंकिंग हम किया करते वो ड्रीम में आता ही है। जो गर्लफ्रेंड का करता है वो भी आती है, भले ही वो करते हो। ओवर थिंकिंग ड्रीम में आता ही है, दैट इज साइंटिफिक। तो स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी ऐसा है, मैं सबको तैयार करता हूँ, सबको प्लेसमेंट मिलता है, मुझे नहीं मिलता। स्वामी जी ने बोला यहाँ डब्बा दिया, दास के दास बनने का, सब प्लेसमेंट मिल जाएगा। सुबह उठा, उसको ड्रीम याद रखा कि स्वामी जी ने बोला दास के दास बनने का। दास का मतलब क्या है? सिंपल मतलब इज लिव विदाउट ईगोइस्टिक अप्रोच, दैट इज कॉल्ड दास के। इफ यू लिव विद इन योर फैमिली, डू नॉट बिलीव आई एम समथिंग, आई एम बेटर देन ऑल दिस, आई एम बेटर देन माय पेरेंट्स, आई एम बेटर देन माय फादर, आई एम बेटर देन माय ब्रदर और सिस्टर, आई एम बेटर देन माय नेबर, इवन विद इन योर फ्रेंड सर्कल, डू नॉट ट्राई टू बी macho man. I am something else. That is the egoistic sense. And if you live natural life, that is for दास के दास जो प्रबोध स्वामी जी जीते हैं हमारी बात, हमारे बीच में वो दर्शन कराते हैं कि यहाँ भी भांडुप में आते रहेंगे, फिर भी वो सबका प्रवचन सुनते और डायरी में नोट डाउन करते हैं। He is the author of 12 books, and still he is writing the pravachan merely done by us younger youth. That is called Das ka Das. So, विनय भाई को बोला स्वामी जी ने दास के दास बनो, सब हो जाएगा। उसने संकल्प किया कि दास के दास मैं बनूंगा। उसने स्टार्ट किया जो दासत्व भाव के प्रसंग है ऐसे, उसको मेमोराइज करने का, उसका मनन चिंतन करने का, मनीष भाई ने बोला उसका निधिध्यास करने का शुरू किया। विद इन 15 days विनय भाई ने अमेज़न में अप्लाई किया था, एनवीडिया में अप्लाई किया था, एप्पल में अप्लाई किया था, सैमसंग में किया था, सब में अप्लाई किया था, रिफ्यूजल था। जिस दिन से संकल्प किया कि मैं दास के दास बन के जीऊंगा, विद इन 3 months 3 months तक अप्लाई नो रिप्लाई था। तो जिस दिन से संकल्प किया कि मैं दासत्व से जीऊंगा, जिस कंपनी से अप्लाई नो रिप्लाई था, विद इन 3 months 15 कंपनीज में से प्लेसमेंट की ऑफर आ गया। 15। विनीत भाई ने किसको रिजेक्ट किया मालूम है? एप्पल को, सैमसंग को, मेटा को, फेसबुक को रिजेक्ट कर दिया। He had selected Nvidia. आज वो Nvidia में है, even though he had done masters in electronics, he is the in charge of AI department right now. Under him, 24 internationally well-known technical person are working under him. Now, दास के दास, उनकी जो मिसेस है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, वहां घर पे आते तो who will cook the रसोई, who will cook the food? जब दास के दास का संकल्प नहीं था, उससे पहले
घरवाली अपनी क्लिनिक से घर आती थी, विनय को बोलती थी, विनय भाई प्लीज ये सब्जी को काट दो। I have something, I don't chop vegetables. You do, that's your duty. After resolving the sankalp of to be Dasna Das, घर वाली क्लिनिक से आती है, उससे पहले तो विनय भाई खुद फूल बना के रेडी रखते हैं। एक संकल्प से जो विनय भाई का फोकस था, डिस्ट्रक्टेड था, वो स्वामी जी ने दास का दास दे दिया। जैसे वो कॉर्पोरेट में एचआर ने वो पानी नहीं पीना था, वो दे दिया था, विनय भाई को दे दिया, दास के दास बनना है। तो इस लोक में भी जॉब का सेटल हो गया और परिवार में भी आत्मीयता हस्बैंड और वाइफ के बीच एस्टैब्लिश हो गई। सो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल फोकस। द फर्स्ट इज चेक ऑफ, the second is mango, and third is spiritual focus. तो हम स्वामी जी और प्रबोध स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम प्रबोध स्वामी जी के साथ पिछले साल वर्जीनिया स्टेट में थे। वहां हॉलिडे इन होटल्स, जिनकी 24 है, सूरत के रहने वाले हैं, वो बिजनेसमैन के घर जाने वाले थे। तो मैं और निरंजन स्वामी जी, प्रबोध स्वामी जी का जहां निवास स्थान था, उससे 40 मिनट दूरी पे हमारा निवास स्थान था। और प्रबोध स्वामी जी का दूसरे दिन का प्रोग्राम राले करके टाउन है, राले का था, जो बाय फ्लाइट 2 घंटे लगते हैं। तो 2 संत लोग हैं जो स्वामी जी की रसोई बनाते हैं, वो लोग राले के लिए सुबह में बाय कार निकल गए थे, तो 10 घंटे लगने वाले थे। तो स्वामी जी के पास एक ही संत था और मैं और निरंजन स्वामी 4 ही संत। तो रसोई के लिए हमारे हरि मोटा करके एक संत है, एक ही संत थे। टोटल वी नीडेड 6 saints, but we have 5 saints. So what to do? Because the rule is we always have to be in company to each other. We cannot go alone. जैसे हरिप्रिय स्वामी जी और ये 2 संत साथ में हैं। तो प्रबोध स्वामी जी के साथ मैत्री स्वामी जी थे, मैं और निरंजन स्वामी जी और हरि मोटा, वो अकेले थे। मैत्री स्वामी जी ने फोन किया कि अभी 10:30 बजे है, हमें यहाँ से आधे घंटे दूर ये मालिक है उनके घर पधरावनी पे जाना है, और पैरेलल 10:30 बजे तो नून का जो लंच प्रिपेयर करना है, तो हरि मोटा को भी एक संत देना पड़ेगा। तो व्हाट वी डू, you come to the place of Prabodh Swamiji, you and Niranjan Swamiji. Niranjan Swamiji would accompany Hari Motta and you be with us. Prabodh Swamiji, me and you. We became 3 and those 2 saints would go for cooking prasad. Okay. So 40 मिनट दूरी पे थे, तो 11:15 बजे हम प्रबोध स्वामी जी के वहां पहुंचे। हम मेरे सिर पे पाग, मैत्री स्वामी जी के सिर पे पाग, निरंजन स्वामी जी के सिर पे पाग, और वो हरि स्वामी जी उनके सिर पे भी पाग। प्रबोध स्वामी जी ऊपर से रूम से नीचे उतर रहे थे स्टेप से, उनके सिर पे पाग नहीं थी। देखो उनका दासत्व कैसा है, नीचे उतरे और सीधे बोले कि एक काम करो मैत्री स्वामी और निरंजन स्वामी, आप जो 24 हॉलिडे इन जो मालिक है होटल्स का इतना बड़ा, उनके घर पधरावनी पे आप जाओ तो आपका एज ए पर्सन एक एक्सपोजर होता है, आपका मार्केटिंग होता है। बुद्धि से आप सोचिए तो आपकी इमेज में एक्सटेंशन होता है, आपको लोग पहचानते हैं। तो प्रबोध स्वामी जी नीचे उतर बोले काम करो कि वो बड़े सेठ के घर जाने वाले, तो मैत्री स्वामी निरंजन स्वामी चले जाए, मैं वो ये हरि स्वामी जी की जोड़ में साथ संभालने की सेवा के लिए जाता हूँ। जो लीडर ऑफ द 100,000 यूथ है, he doesn't prefer to exhibit himself. I am Prabodh Swami ji. He wants to exhibit himself before the Almighty Hari Prasad Swami ji and Bhagwan Swami Narayan. I am not the main person, but I am the Dasna Das. Let me chop the vegetables. Let me do this seva. तब मैत्री स्वामी निरंजन स्वामी ने बोला कि नहीं, आपको ही जाना चाहिए,
तो स्वामी जी की गाड़ी में स्वामी जी, मैत्री स्वामी और मैं और निरंजन स्वामी और हरि स्वामी वो रसोई के लिए दूसरे घर चले गए जहां पे था, वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो हम वर्जीनिया स्टेट में 30 किलोमीटर जाना था। टाइम 11:15 हो गए थे। स्वामी जी यूजुअली 1 o'clock थाल लेते हैं दोपहर को, तो 11:15 हम निकलेंगे तो 12:15 को हम पहुंचेंगे, वहां पे आधा घंटा बैठेंगे तो वापस आने में 1:50 हो जाएगा। So already we were late behind the schedule. So we were going to that businessman's house. बीच में ट्रैफिक लाइट आई, ग्रीन थी, हम नियर बाय पहुंचे तो रेड हो गए और 3 मिनट तक रेड रहे। तो मैं पीछे था, प्रबोध स्वामी जी के पीछे मेरे हाथ में ठाकुर जी थे और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा था कि ठाकुर जी, वी आर ऑलरेडी बिहाइंड द शेड्यूल, प्लीज लेट द रेड लाइट बिकम ग्रीन। दिस इज नॉट इंडिया के रेड में भी घुस जा, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, इवन हियर वी हैव टू, इट इज फॉर सेफ्टी। सो मैं ठाकुर जी से बात कर रहा था, 2.5 मिनट तक मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी जल्दी कीजिए, वापस भी आधा घंटा आना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में 20 मिनट्स थार के लिए जाना है, तो 50 मिनट्स तो है ही हमें रिटर्न में, तो प्लीज जल्दी ट्रैफिक लाइट। तब तक तो प्रबोध स्वामी जी आगे ही देख रहे थे और मैं ठाकुर जी से मजाक में मेंटली बात कर रहा था, ठाकुर जी प्लीज सिम खुल जा करवा दो। मोरी का डायलॉग है, सिम खुल जा। 2.5 मिनट हो गए, 3 मिनट होने को बाकी थी। प्रबोध स्वामी जी ने पीछे देखा, मैं क्या बोल रहा था वो तो मैं ठाकुर जी को बोल रहा था। प्रबोध स्वामी जी ने पीछे देख के बोला, हरिशरण स्वामी जी सिम खुल जा। जैसे पीछे देख के बोला वैसे आगे की रेड लाइट ग्रीन हो गई। Why we are the most fortunate person on this universe, कि जब हमारे लाइफ में, करियर में, फैमिली में और हमारे आत्मा पे जब रेड लाइट का ट्रैफिक आएगा, तब तक प्रबोध स्वामी जी बोलने वाले हैं, सिम खुल जा, ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट हमारे हर ट्रैफिक में हो, इसलिए मनीष भाई ने बोला कि हमें वीकली फोरम अटेंड करना है, हमें अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती बनाए रखना है, हमें 20-25 मिनट भजन करना है सिंसियरली, और लास्ट में मनीष भाई ने बताया कि हमें मिशन डबल की जो सेवा है उसमें भी हमें निमित्त बनना है। तो स्वामी जी अपने इष्ट देव और प्रबोध स्वामी जी का दीक्षा देंगे, तो उनके चरणों में हमें क्या गिफ्ट देना है, तो उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि गिफ्ट के रूप में स्वामी जी, अगर हम मंदिर में जाते हैं, यहाँ पे गणेश जी का हम कल हरिप्रिया स्वामी जी को सिद्धि विनायक मंदिर में लेके गए थे, वहां पे बॉम्बे में, वो गणेश जी का मंदिर। तो हम मंदिर में जाते हैं तो फ्रेश प्रसाद लेके जाते हैं, अगले दिन का प्रसाद लेके नहीं जाते गणेश जी के आगे। हम मंदिर में जाते हैं तो फ्रेश फ्लावर्स लेके जाते हैं, वो मुरझाए हुए फ्लावर्स लेके नहीं जाते। तो हमें प्रबोध स्वामी जी के चरणों में निमित्त बनना है, फ्रेश एज युवा में बनना है, बुढ़े होके नहीं बनना है। तो उनके चरणों में प्रार्थना कि वीकली सभा के माध्यम से, भजन के माध्यम से, मनीष भाई जैसे मित्र के माध्यम से हम आपके मिशन डबल में निमित्त बन के हमारा जीवन का गोल क्लियर कर सके और हमारे जीवन को सक्सेसफुल बना सके, हैप्पीली। ऐसा बल, बुद्धि और शक्ति प्रदान करे, यही प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की है।